Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, Basics of Geometry. In this chapter, we will learn about the angles, but first, we recall some geometrical terms which we have learned in the previous classes. इस चैप्टर में हम एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो हम प्रीवियस क्लास में करके आए उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं. Plane. A plane is any flat surface. Concept of a plane can be easily understood by seeing the surface of a table, blackboard or the surface of the floor. Plane आपको पता है कोई भी flat surface, चाहे आपका वो floor हो, चाहे आपका table का surface हो, that is plane. Remember that a plane has no boundary. Plane की कोई भी boundary नहीं होती है. Point. A point shows a definite position. It has no length, breadth, thickness, shape and size. We represent a point by a dot and label it with a capital letter. Here A, X, P and N are points. देखिए point आपको पता है इस तरह से एक जो dot होता है this is called point. ये आपको जो चार dots दिए गए हैं A, X, P, N ये आपके dots हैं. आप इन्हें कोई भी नाम दे सकते हैं कैपिटल लेटर में. इसकी कोई भी लेंथ, ब्रेथ, थिकनेस, शेप और साइज नहीं होता है. Line. A line is a straight path of points that extend on and on in both the directions without ever ending. It has no definite length. A line is named by using any 2 points on a line. So, the line given alongside is named as AB or BA. देखिए, आपकी जो line है, इसके कोई end points नहीं होते. आप इसको infinitely बढ़ा सकते हैं दोनों ही directions में. और ये इस तरह से line आपकी इस तरह से show की जाती है. इसको आप नाम दे दीजिए AB. आप इसे ऐसे लिख सकते हैं AB. और दूसरा तरीका है आप इसे लिख सकते हैं B. Line segment. A part of a line is called the line segment. It has a fixed length and 2 endpoints. The given line segment has X and Y as endpoints. It is named by using these endpoints as XY or YX. देखिए आपकी line segment जो है उसके endpoints होते हैं like this. 2 endpoints होते हैं और आप इसे किसी भी डायरेक्शन में नहीं बढ़ा सकते इसका क्योंकि फिक्स्ड लेंथ होता है. इसको आप कोई भी नाम दे दीजिए और आप इसे किससे डिनोट कर सकते हैं. हम लिखेंगे ए बी और बी ए. रिमेंबर दैट अ लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स. आपकी जो लाइन सेगमेंट होती है वो किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है. अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड एंडलेसली इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड अ रे. A ray is named by its end point and any other point on it. So the ray shown alongside is named as MN, ray MN. देखिए आपको ये रे नज़र आ रही है. रे आपकी कैसे होती है, इसका एक एंड पॉइंट होता है और एक डायरेक्शन में इसे बढ़ा सकते हैं, कितना भी हम इसे बढ़ा सकते हैं. और इसे हम कैसे, इसको जैसे आपने ए बी लिखा है इसे हम कैसे डिनोट करेंगे, ए बी एंड दिस साइन, दिस एरो साइन. ये एरो का जो साइन है वो ये शो करता दैट इट इज अ रे. Types of lines. Lines are of many types, but we will learn about only 2 main types of lines here. Parallel lines. 2 lines which never meet at any point are known as parallel lines. In the alongside figure, line AB and line PQ are parallel to each other. If we extend AB and PQ, they never meet at any point. देखिए आपकी बहुत सारी तरह की लाइंस होती हैं, पर हम सिर्फ 2 ही तरह की लाइंस पढ़ेंगे. सबसे पहला है पैरेलल लाइंस. जैसे आपको ये नजर आ रही होंगी, ये आपकी पैरेलल लाइंस है. 2 पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो कभी भी आपस में मीट नहीं करती, बिल्कुल वो स्ट्रेट ऐसे स्ट्रेट जाती हैं, जैसे आपके रेलवे ट्रैक्स होते हैं लाइक दिस. और ये देखिए आप इनको बढ़ाते जाइए, आप ए बी को बढ़ाइए, आप पी क्यू को बढ़ाइए, आपस में किसी भी पॉइंट में नहीं मीट करेंगे. तो ऐसी लाइंस को बोलते हैं पैरेलल लाइंस. Perpendicular lines. If a vertical straight line falls on a horizontal straight line and make an angle of 90 degree, then both the lines are called perpendicular to each other. In the alongside figure, MN is a horizontal line which makes an angle with the vertical line PQ. So the lines MN and PQ are perpendicular to each other. Perpendicular line क्या होता है, देखिए एक horizontal line होती है आपकी और उस पर एक line vertically पड़ती है इस तरह से और 90 डिग्री का एंगल बनाती है. तो देखिए ये आपकी थी MN and this line is PQ. ये 90 डिग्री का आपका एंगल बना रहा है ना. तो ये जो आपकी लाइंस है MN एंड PQ ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है. ध्यान रहे परपेंडिकुलर लाइंस में हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है वर्टिकल जिसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है.
चलिए अब एक्सरसाइज देखते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लाइंस, लाइन सेगमेंट्स एंड रेज, ऑल्सो नेम देम। अभी आपने लाइन सेगमेंट और रे के बारे में पढ़ा है, तो हमें इन्हें क्लासीफाई करना है कि वेदर दीज लाइंस आर लाइंस और लाइन सेगमेंट्स और रेज। जैसे सबसे पहले पी क्यू देखिए, पी क्यू। अब इसमें आप देखिए ये दो एरोज आपके बन रहे हैं, दैट मीन्स पी क्यू आपकी क्या है, पी क्यू आपकी लाइन है। तो आपने इसे कैसे डिनोट करना है, पी क्यू एंड नेक्स्ट इज एम एन। ये आपकी एम एन क्या है, एम एन भी आपकी लाइन है, तो आप इसे नाम भी देंगे एम एन, इस तरह से। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, बाकी आपके देखिए अब आप खुद ही करेंगे, जितने पार्ट्स हैं आप इन्हें देखेंगे कि ये रे है या फिर लाइन सेगमेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट सी डी। लाइन सेगमेंट आपको ड्रॉ करनी है, लाइन सेगमेंट। आपको मैंने बताया था लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स होते हैं, तो दिस इज अ लाइन सेगमेंट सी डी। ओके, नेक्स्ट लाइन पी क्यू, बी पार्ट लाइन नॉट लाइन सेगमेंट, तो आप कैसे इसे ड्रॉ करेंगे, दिस इज लाइन पी क्यू। ओके चिल्ड्रन, एंड बाकी की एक्सरसाइज आप खुद से करेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग, राइट एनी 2 एग्जाम्पल्स दैट रिप्रेजेंट रे फ्रॉम योर सराउंडिंग्स। अब आप अपने सराउंडिंग्स में चीजों को ऑब्जर्व कीजिए और कोई भी 2 एग्जाम्पल्स दीजिए जो कि रे को रिप्रेजेंट करते हैं। एंगल, when 2 rays meet at a common endpoint, they form an angle. The common endpoint is called the vertex of the angle and the 2 rays are called the arms of the angle. We use the symbol this to denote an angle. We can see many examples of the angle in our surroundings, such as the adjacent sides of a blackboard, 2 arms of a divider, hands of a clock, etc. अब देखिए एंगल क्या होता है, जब 2 रेज मिलती हैं और एक कॉमन एंड पॉइंट पे, तो वो एंगल बनाती हैं। तो जो कॉमन एंड पॉइंट होता है उसे कहते हैं वर्टेक्स उस एंगल का, और जो 2 रेज होती हैं वो आपकी होती है आर्म्स। जैसे देखिए आपका ये इस तरह से है, आपका एक एरो और ये सेकेंड एरो। अब देखिए ये जो एरो हैं आपके, 2 जो एरोज हैं यानी कि 2 जो रेज हैं वो आपके कौन से पॉइंट पे मिल रही है, ये आपका कॉमन पॉइंट है, तो दिस पॉइंट इज एंगल, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स। और बाकी ये जो साइड्स होती हैं आपकी, दीज आर आर्म्स, ये आपकी आर्म्स है एंड ये आपका जो पर्टिकुलर पॉइंट है दैट इज वर्टेक्स। अब जैसे आप देखिए, आपने डिवाइडर देखा है, डिवाइडर का ये जो पॉइंट देखिए, आपके 2 रेज आपस में मिल रही है इस कॉमन पॉइंट पे, दिस इज कॉल्ड एंगल। इसी तरह से आपकी जो क्लॉक्स की हैंड है वो भी एंगल बनाती है, और ये बोर्ड की जो एडजेसेंट साइड्स हैं, जैसे ये देखिए ये एंगल है आपका, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, और आपका ये भी एंगल है। ओके चिल्ड्रन, in the adjacent figure 2 rays QP and QR with a common endpoint Q form an angle. By using symbol, we name this angle as PQR or RQP and we read it as angle PQR or angle RQP. अब आपको देखिए ये 2 रेस दी गई हैं, ये Q पे आपके मिल रही हैं, तो Q आपका जो है ये वर्टेक्स है। हमेशा हम एंगल को इस साइन से डिनोट करते हैं। अब हम इसे कैसे लिखेंगे, देखिए आपका एंगल बन रहा है किस पे, क्यू पे, तो आप इसे किस तरह से रीड करेंगे, एंगल पी क्यू आर या फिर एंगल आर क्यू पी। ये जो क्यू जहाँ पे आपका एंगल बन रहा है ये हमेशा आपका बीच में होना चाहिए। ओके, रिमेंबर दैट while writing an angle always put the name of the vertex in the middle. वही जो मैंने अभी आपको बताया कि वर्टेक्स का जो नेम है वो हमेशा मिडल में आना चाहिए। Interior and exterior of an angle. The region bounded by the rays is said to be the interior of the angle and the region outside the rays is said to be the exterior of the angle. So, at angles CAB, points L, M and P are in the interior of the angle and points N and O are in the exterior of the angle. अब interior और exterior क्या है एंगल का, जैसे ये आपका एंगल है, इस एंगल के अंदर जो भी पॉइंट्स होंगे लाइक Q, P, R, ये सारे इंटीरियर हैं, और इस एंगल के बाहर जो पॉइंट्स होंगे जैसे कि M, पॉइंट N, ये आपके एक्सटीरियर पॉइंट्स होंगे। अब जैसे आपका यहाँ पे देखिए एंगल दे रखा है एंगल CAB, इसके अंदर के पॉइंट्स हैं आपके, इस एंगल के अंदर के पॉइंट्स हैं आपके L, M, P, तो ये इंटीरियर पॉइंट्स हैं, और इस एंगल के जो बाहर है यानी कि O and N, ये आपके क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट्स हैं। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट एन एंगल। देखिए ए पार्ट देखिए, क्या ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं है ना, क्योंकि इसमें कोई भी
रेज जो है एक कॉमन पॉइंट पे नहीं मीट कर रही है। नेक्स्ट देखिए, क्या ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है? यस, ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि जो दो रेज है वो एक कॉमन पॉइंट पे मिल रही है। ओके, बाकी आप खुद पार्ट्स इसके खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नेम ऑफ द वर्टेक्स एंड आर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। आपको इसमें क्या बताना है? वर्टेक्स बताना है सबसे पहले, वर्टेक्स का नेम और आर्म्स। देखिए, हैव अ लुक। सबसे पहले वर्टेक्स, इसमें आपका वर्टेक्स है बी, ओके, एंड आर्म्स, आर्म्स है आपकी बी ए एंड डोंट फॉरगेट टू पुट दिस साइन जो आपका रे का साइन होता है, बी ए एंड बी सी। इसी तरह से आपका जो सेकेंड एंगल है ये देखिए एस टी यू। सबसे पहले आप वर्टेक्स का नेम देंगे, तो वर्टेक्स है आपका टी एंड आर्म्स होंगी आपकी टी एस एंड टी यू। ओके चिल्ड्रन, अब बाकी की एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे। Comparing angles. On seeing the opening of two arms of each angle, we can compare the angles. But this method fails when difference between the angles is marginal. Let's see. देखिए, हम दो आर्म्स की ओपनिंग से पता लगा सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं एंगल्स को, बट अगर उनके बीच का डिफरेंस बिल्कुल थोड़ा सा होगा तो ये मेथड फेल हो जाता है। जैसे देखिए, आपको ये, आप इसे बता सकते हैं इस पार्ट में कि कौन सा एंगल आपका बड़ा है। ऑब्वियसली ये बड़ा है क्योंकि इसकी आर्म ज़्यादा खुली है, बट क्या आप इन दोनों फिगर्स में से बता सकते हैं कि कौन सा एंगल बड़ा है? नहीं। इन द figure 1 we can easily observe that angle DEF is greater than angle EBC, but in figure 2 we cannot explain that which angle is greater, so in such case we need to measure the angles. अब इस केस में हम बता ही नहीं पाएंगे कि कौन सा ग्रेटर है, तो इसके लिए हमें एंगल्स को मेजर करना पड़ेगा। तो किस तरह से उन्हें मेजर करेंगे? लेट्स सी। Measuring angles. The instrument used for measuring the angles is called a protractor. The diagram on the right shows a protractor. There are two semicircular scales on it. One of them contains 0 degree to 180 degree return in anti-clockwise direction is called an inner scale, and the other also contains 0 to 180 degree return in clockwise direction. It is called an outer scale. Each subdivision represents 1 degree. We can read a protractor from left to right or from right to left. The line segment joining 0 degree and 180 degree marks is called the baseline of the protractor. The midpoint of the baseline is called the center of the protractor. Let's now measure the given angle. देखिए, आपको एंगल जो है कैसे मेजर करते हैं, ये आपने आपके ज्योमेट्री बॉक्स में जो आता है प्रोटेक्टर, ये आपने देखा ही होगा। अब इसके आपके देखिए, आप देखिए 0 से लेके 180 डिग्री पे आपके एंगल्स बने हुए हैं, वो भी कौन सी डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो इन्हें कहते हैं इनर स्केल। इसके बाद एक और है आपका, यहाँ से 0 से लेके 180 डिग्री, वो है क्लॉकवाइज, तो दैट इज कॉल्ड आउटर स्केल। ओके, 0 से लेके 180 डिग्री तक इसमें आप एंगल्स मेजर कर सकते हैं। तो चलिए कैसे मेजर करते हैं देखते हैं। टू मेजर द गिवन एंगल बाय यूजिंग अ प्रोटेक्टर वी यूज द फॉलोइंग स्टेप्स। Step 1, place the center of the protector at the vertex of the angle. Step 2, make sure that 0 degree line of the protector is placed along one arm BC of the angle. अब जो एंगल आपको मेजर करना है, सबसे पहले जो वर्टेक्स है आपका, उसको आपने प्रोटेक्टर के बीचों बीच में रखना है, सेंटर में रखना है। ओके, और इसके बाद आप क्या करेंगे? आप ये श्योर करेंगे कि उसकी जो एक आर्म है वो 0 डिग्री से शुरू हो। Read the value on the protector as indicated by the other arm AB of the angle. The arm AB coincides with the division marked as 60. Thus, the measure of angle ABC is 60 degree. So, angle ABC is equals to 60 degree. देखिए क्या होगा आपका, जब आपने सबसे पहले आपने जो वर्टेक्स है प्रोटेक्टर के बीचों बीच में रखना है, एक आर्म उसकी 0 से शुरू होनी चाहिए, 0 डिग्री पे होनी चाहिए, और उसके बाद देखेंगे आपकी जो दूसरी आर्म है वो कहाँ पे कोइंसाइड हो रही है, तो वो होती है 60 डिग्री पे, इसीलिए आपका जो एंगल ABC है वो है 60 डिग्री। रिमेंबर दैट ऑलवेज यूज द स्केल विद 0 डिग्री ऑन वन ऑफ द आर्म्स ऑफ द एंगल। देखिए, आप दो तरीके से कर सकते हैं, जैसे आपको मैंने बताया था कि इनर स्केल होता है आपका या आउटर स्केल होता है, आपकी मर्जी, आप कैसे भी कर सकते हैं। बट ये देखिए, जैसे आपका ये एंगल इस तरह से, जैसे आपको दिया हुआ है PQR, मेक श्योर आपकी ये जो आर्म है ये 0 डिग्री पे होनी चाहिए। एंड अगर आपका एंगल इस तरह से है, देन मेक श्योर इस
QR, देन मेक श्योर आपके जो आर्म है इस तरफ ये 0 डिग्री पे होना चाहिए। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। मेजर द फॉलोइंग एंगल्स। इसमें आपको क्या करना है, एंगल मेजर्स करने हैं। देखिए ये एंगल आप खुद ही मेजर करेंगे प्रोटेक्टर लेके, उसके बाद आप देखेंगे कि ये कहाँ पे हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे आपका ये एकदम स्ट्रेट एंगल बन रहा है ना, दिस इज 90 डिग्री। 90 डिग्री आपका हमेशा ही एकदम एल शेप में बनता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। आपके पास प्रोटेक्टर है, आप प्रोटेक्टर को यूज करते हुए इन सभी एंगल्स को मेजर करके लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, मेजर एंड फाइंड द ग्रेटर एंगल इन ईच पेयर। देखिए ये भी आप खुद ही करेंगे बिकॉज आई डू नॉट हैव प्रोटेक्टर। अब प्रोटेक्टर आपके पास है, आप दोनों ही एंगल्स को मेजर करेंगे और फिर ये बताएंगे कि कौन सा बड़ा है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में तो ऑब्वियसली तो देख के पता चल रहा है कि आपका ये एंगल बड़ा होगा बिकॉज दिस इज 90 डिग्री और ये आपका 90 डिग्री से कम होगा। चिल्ड्रन आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करेंगे। Construction of angles. Let's construct an angle of 110 degree. To construct an angle, we follow the given steps. अब देखिए आपको 110 डिग्री का एक एंगल बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले ड्रॉ अ रे PQ. सबसे पहले आप एक रे ड्रॉ करेंगे PQ. ये देखिए इस तरह से। Next step is place the protector in such a way that its central point falls on P and align the ray with the 0 degree mark. आपने प्रोटेक्टर को इस तरह से रखना है कि जो P पॉइंट है आपका, P ये बिल्कुल प्रोटेक्टर के सेंटर में आना चाहिए और आपका ये जो Q पॉइंट है ये आपके 0 डिग्री पे। स्टेप 3, यूजिंग इनर स्केल मार्क अ पॉइंट R विच कोइंसाइड विद द 110 मार्क। देखिए अब आप क्या करेंगे, आप इसे रीड कीजिए 110 कहाँ पे आ रहा है, जैसे यहाँ पे आया एक पॉइंट इस पे आप लगा देंगे। ओके, रिमूव द प्रोटेक्टर एंड जॉइन R टू द वर्टेक्स P, सो एंगल R PQ is equals to 110 डिग्री। आप क्या करेंगे, देखिए ये बीचों बीच में आपका प्रोटेक्टर आया, आप इनर स्केल का यूज करते हुए जैसे आपका यहाँ पे है 110, आप एक डॉट लगाएंगे, प्रोटेक्टर को रिमूव करेंगे, इसको आप P से ज्वाइन कर देंगे एंड दिस इज R। तो आपका एंगल बन गया, एंगल RPQ is equals to 110 डिग्री। ओके, Remember that we can also construct the above angle with the help of outer scale of the protector. आपने ये जो एंगल बनाया है ये इनर स्केल का यूज़ किया है, आप आउटर स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से, ऐसे आपने एक रे आप इस तरह से बनाएंगे राइट, और ये आपका बीचों बीच में आएगा, ये जो पॉइंट है आपका, एंड देन जहाँ पे आपका 110 होगा आप वहाँ से इस तरह से ज्वाइन कर देंगे, तो आपका ये इस तरह से भी बन सकता है। चलिए देखिए एक्सरसाइज देखिए। कंस्ट्रक्ट द एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स विद द हेल्प ऑफ ए प्रोटेक्टर एंड अ रूलर। आपको प्रोटेक्टर और रूलर की हेल्प से, रूलर यानी कि स्केल की हेल्प से ये सारे ही एंगल्स ड्रॉ करने हैं, ये इन्हें आप खुद ही करेंगे। Classification of angles. The angles are classified on the basis of their degree of measurement as follows. Acute angle. An angle whose measure is greater than 0 degree and less than 90 degree is called an acute angle. For example, देखिए acute angle क्या होता है आपका, जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। इन शॉर्ट जो एंगल आपके 90 डिग्री से कम के होंगे ना वो आपके एक्यूट एंगल हैं। जैसे देखिए 40 डिग्री, 25, 60, 75 डिग्री, ये सारे ही एंगल्स 90 डिग्री से कम है तो इन्हें हम कहते हैं एक्यूट एंगल। सम एग्जांपल्स ऑफ एक्यूट एंगल्स वी सी अराउंड अस आर। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल जो आप अपने आसपास देखते हैं, जैसे आपको देखिए ये इस तरह से दिया गया है, आपका ये हैंड क्लॉक्स आपकी जो होती हैं, क्लॉक की जो हैंड्स होती हैं, इसी तरह से आपके फिंगर्स, जैसे अगर आपने फिंगर्स को कर दिया तो ये आपके सारे एक्यूट एंगल्स हैं। राइट एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल। अब राइट एंगल क्या होता है, जिसका मेजरमेंट होगा 90 डिग्री वो हमेशा आपका राइट एंगल होगा। देखिए ये सारा 90 डिग्री का है आपका। सम एग्जाम्पल्स ऑफ राइट एंगल्स वी सी अराउंड अस आर। कुछ एग्जाम्पल्स राइट एंगल के देखिए आप इस तरह से, जैसे आपका ये दिया हुआ है, इस तरह से टेबल है और इस तरह से जब आपके 3 बजते हैं या आपके 9 बजते हैं घड़ी में तो वो राइट एंगल होता है, क्योंकि देखिए हमेशा राइट एंगल इस तरह से होगा आपका एकदम एल शेप में, या तो ऐसे या फिर ऐसे। Next is obtuse angle. An angle whose measure is greater than 90 degree and less than 180 degree is called an obtuse angle. अब obtuse angle कौन से हैं, जो 90 डिग्री से तो बड़े हैं बट 180 डिग्री से छोटे हैं। तो देखिए ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके, जैसे 110 डिग्री, 155 डिग्री, ये सारे ही एंगल्स आपके 90 से तो बड़े हैं बट 180 से छोटे हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल्स वी सी अराउंड अस आर। और कुछ एग्जाम्पल्स आप डेली अपनी लाइफ में देखते हैं ऑब्ट्यूस एंगल के, जैसे ये देखिए आपका ये ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, ये देखिए ये इस तरह से ये ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है।
straight angle, an angle whose measure is equal to 180 degree is called a straight angle. और straight angle आपका बहुत easy होता है, जो बिल्कुल straight हो 180 डिग्री का, उसे straight angle कहते हैं. जैसे कि आपको सारे examples दिए गए हैं, लाइन्स जो आपको बनाई गई हैं angles, और कुछ examples हैं of straight angles we see around us are, जैसे देखिए scale बिल्कुल सीधा होता है, जब घड़ी में 6 बजता है तो क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रेट एंगल बनता है. इसी तरह से ये देखिए इसमें बिल्कुल स्ट्रेट एंगल बन रहा है. रिफ्लेक्स एंगल, an angle whose measure is greater than 180 and less than 360 is called a reflex angle. अब रिफ्लेक्स एंगल क्या है, ध्यान से देखिएगा, जो 180 से तो बड़ा है बट 360 से छोटा है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल. जैसे देखिए 195 डिग्री, 200 डिग्री, ये सारे 180 से तो बड़े हैं बट 360 से छोटे हैं. Some examples of reflex angles we see around us are. अब देखिए examples, जैसे पिज्ज़ा का एक स्लाइस निकाल दीजिए, ये जो एंगल बन रहा है दिस इज रिफ्लेक्स एंगल. इसी तरह से इसमें ये जो एंगल बन रहा है ये आपका रिफ्लेक्स एंगल है. इसी तरह से घड़ी में आपका रिफ्लेक्स एंगल होगा ये वाला. ओके, नेक्स्ट इज कंप्लीट एंगल. एन एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू 360 डिग्री इज कॉल्ड अ कंप्लीट एंगल. जिस भी एंगल का मेजर होगा 360 डिग्री वो आपका कंप्लीट एंगल होता है. देखिए जैसे बिल्कुल एकदम एक राउंड बन गया, दिस इज 360 है ना. यहाँ पे भी देखिए तो कुछ एग्जांपल्स हैं आपके कंप्लीट एंगल्स के. वी सी अराउंड अस आर, ये देखिए आपको ये एंगल बना के दिया हुआ है एकदम सर्कल, दिस इज सर्कल एंड दिस इज सर्कल, तो ये आपका 360 डिग्री है, दैट मीन्स अ फुल सर्कल. चलिए एक्सरसाइज देखते हैं. मेजर एंड आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग एंगल्स आर एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स और कंप्लीट एंगल्स. आपको सबसे पहले इन एंगल्स को मेजर करना है और उसके बाद उनको बताना है कि वो एक्यूट है, राइट है, ऑब्ट्यूज है. ओके, जैसे फर्स्ट एंगल है, आप इसको मेजर करने की जरूरत नहीं. एक एल बन रहा है, बेशक वो उल्टा बन रहा है बट एल, दिस इज 90 डिग्री, 90 डिग्री है, दैट मीन्स ये कौन सा एंगल है आपका, राइट एंगल. इसी तरह से ये एंगल देखिए, आपको ना प्रोटेक्टर से मेजर करके बताना पड़ेगा. ये आपका 90 डिग्री से बड़ा है तो ये आपका हो गया ऑब्ट्यूज एंगल. ओके, अब बाकी आप खुद ही मेजर करेंगे और उनकी आइडेंटिफाई करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट काइंड ऑफ एंगल इज शोन इन ईच क्लॉक. अब क्लॉक में आपको टाइम दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि ये किस तरह का एंगल है. सबसे पहले देखिए घड़ी में बज रहे हैं 3, एकदम ऐसे स्ट्रेट इस तरह से बन रहा है तो ये है आपका राइट एंगल. ठीक है, नेक्स्ट है आपका, देखिए आपका एंगल बन रहा है इस तरह से, तो ये 90 डिग्री से कम है तो ये है आपका एक्यूट एंगल. ओके चिल्ड्रन, और बाकी सी एंड टी ये आप खुद से करेंगे. Pairs of related angles, complementary angles. Two angles are said to be complementary if their sum is 90 degree. Here, angle ABC is equals to 60 degree and angle LMN is equals to 30 degree. Then, angle ABC plus angle LMN is equals to 60 plus 30 is equals to 90 degree. So, angle ABC and angle LMN are complementary angles. Angle ABC and angle LMN are complement of each other. Complementary angles किसे कहते हैं? देखिए, दो angles को कॉम्प्लीमेंट्री तभी कहा जाता है जब उनका सम होता है 90 डिग्री. जैसे देखिए आपका एंगल ABC है 60 डिग्री है ना, और आपका जो एंगल है LMN वो है 30 डिग्री. दोनों को प्लस करके आया है 90 डिग्री. दैट मीन्स ये दोनों ही एंगल जो है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है. सेकेंड इज सप्लीमेंट्री एंगल्स. Two angles are said to be supplementary if their sum is 180 degree. Here, angle PQR is equals to 120 degree and angle XYZ is equals to 60 degree. Then, angle PQR plus angle XYZ is equals to 120 degree plus 60 degree is equals to 180 degree. So, angle PQR and angle XYZ are supplementary angles. Angle PQR and XYZ are supplement of each other. Supplementary angles किसे कहते हैं? जब दो angles का sum होता है 180 डिग्री. जैसे आपका इसमें देखिए जब हम 120 और 60 डिग्री को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आएगा. इसका मतलब ये जो दोनों ही एंगल्स हैं एक दूसरे के सप्लीमेंट है. Congruent angles or equal angles. Two angles are said to be congruent if they are equal in measurement. Here, angle FGH is equals to 70 degree and angle NOP is equals to 70 degree. So, angle FGH and angle NOP are congruent angles. Congruent angles are represented as angle FGH is equals to angle NOP. दो एंगल्स को कॉन्क्रेंट कब कहा जाता है? जब उनका मेजरमेंट सेम होता है. जैसे आपको ये दोनों ही एंगल्स दिए गए हैं, दोनों ही 70 डिग्री के हैं, तो दोनों ही एक दूसरे के कॉन्क्रेंट हैं.
Adjacent angles. Two angles are said to be adjacent to each other if they have the same vertex, a common arm, and the other arms of the two angles are on the opposite sides of the common arm. Here, vertex of angle ABD is B. Vertex of angle DBC is B. Common arm of both angles is BD and arms opposite to BD are AB and BC. So, angle ABD and angle DBC are adjacent angles. अब देखिए एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, जब इनका सेम वर्टेक्स हो और एक कॉमन आर्म हो और बाकी इनकी जो दो आर्म्स हैं वो ऑपोजिट साइड में। जैसे देखिए आपको ये दिया गया है, ओके अब आप ज़रा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले है आपका ए बी सी और ये इस तरह से आपका डी। अब देखिए एंगल ए बी डी, आपका जो एंगल ए बी डी है इसमें आपका जो B है वो वर्टेक्स है। इसी तरह से आपका एंगल DBC, इसमें भी B आपका वर्टेक्स है ना। तो B जो है आपका क्या है, कॉमन वर्टेक्स है और इन कॉमन वर्टेक्स की एक कॉमन आर्म है जो है BD, यानी दोनों ही केसेस में आपका क्या आ रहा है, BD आ रहा है। जैसे ABD इसमें आपका आया BD एंड एंगल DBC इसमें भी आपका आया BD, एक कॉमन आर्म है। तो ऐसे एंगल्स को हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, टू एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइंस having no common arm are called vertically opposite angles. Here angle POQ and angle ROS as well as angle QOR and angle SOP are vertically opposite angles. Vertically opposite angles कैसे होते हैं, जब दो intersecting lines होती हैं आपकी और उनकी कोई भी common arm नहीं होती है। So in this case देखिए vertically opposite, this angle is equals to this angle and this angle is equals to this angle, यानी कि vertically opposite means आमने सामने वाले एंगल्स। ओके तो आपके ये जो एंगल्स हैं, जैसे कि ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल, ये वर्टिकली ऑपोजिट है। ओके रिमेंबर दैट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। जैसे कि अगर ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का होगा और जितने का एंगल ये होगा इसके सामने वाला भी उतने का ही होगा। चलिए एक्सरसाइज करते हैं। फाइंड आउट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ द फॉलोइंग। आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है और आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जब दोनों एंगल्स का सम होता है 90 डिग्री। तो आपको एक एंगल दिया गया है 30, तो सेकंड हम कैसे निकालेंगे, 90 में से आप 30 माइनस करेंगे, 90 डिग्री में से 30 डिग्री, सो आंसर विल बी 60 डिग्री। इसी तरह से सेकेंड पार्ट है आपका 65, तो अगेन आप 90 डिग्री में से 65 डिग्री को माइनस कर दीजिए, your answer will be 25 degree. Question number 2, find out the supplementary angle of the following. अब आपको supplementary angle निकालना है। supplementary angle में क्या होते हैं, आपके दो एंगल्स का सम होता है 180, तो आपको एक एंगल पता है 80, तो आप क्या करेंगे इसमें, देखिए आप 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे 80 डिग्री, सो योर आंसर विल बी 100 डिग्री। ये आपका सप्लीमेंट्री आ गया। नेक्स्ट बी पार्ट है 120 डिग्री। अगेन आप 180 में से 120 डिग्री को माइनस करेंगे, योर आंसर विल बी 60 डिग्री। ओके चिल्ड्रन, बाकी क्वेश्चंस भी आपके इसी तरह से हैं, आपको सप्लीमेंट्री एंगल ऐसे ही निकालने हैं। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा और अब चैप्टर की प्रैक्टिस खुद से करेंगे।